Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So last few days, some requests are coming. Sir, start a campaign for age relaxation. At least age be raised to 32 years for general category or EWS, etc. Now, my view is this is not the right time to start any campaign because it will not bring any result. The country is passing through a very critical stage, a stage where all forces are busy tackling the emergent issue, that is, how to contain this deadly disease. If we read the today newspaper, the finance ministry allowed the state governments as well as central government to borrow, that means to take money on loan in advance as compared to their scheduled plan of borrowing. What does it mean? That means the central government as well as state government are feeling pinch of resources. Their revenue collection is falling drastically, whereas their expenditure on health is rising like anything, because they have to manage the hospital facilities. And from 1st May, the vaccination from 18-year onwards is to kick in. And most of the states have said that they will bear these expenses. So if these expenses are to be borne by the government, for which they have not made any allocation in their budget, because at the time of budget there was no thinking in government that 18-year plus people will be provided vaccination. So they require additional resources. So additional resources means taxation. But since activities are going down, whom you can tax? Nobody. So the only option left with the government is to borrow the money, to take money on interest, and that they allowed yesterday. That means at present we are passing through a very, very crucial stage and very, very difficult stage. And my advice is we should keep our cool, wait for the time when things settle, and then you can run a campaign, because up to 30th June I don't see any examination will happen. Today also one notification came in that they have mentioned that they will conduct the exam in the month of June. I doubt. This must be their old drafting. With the present condition prevailing in the country, holding of an exam seems near impossible. So in such circumstances, I think we should hold on to our individual worries. Yes, a person who is running out of age is definitely worried, and he should approach the government, and the government should consider his state of affair. But if we start the campaign at a wrong time, it leads us nowhere. So my advice is, please wait. This is the time we should simply focus on study. We continue our effort and wait for things to settle down. The moment things settle down, we can run a campaign, we can make requests to the appropriate authority, and the authority will be in condition to listen our complaint. When everybody in a stage of panicky and the most of the offices are running at the very, very low strength, so they will not be having time to listen these things, and your effort will go in vain. This is my advice. Rest is your choice. I will definitely help the candidates. Those are running out of age. I will help you in running a campaign because their cause is genuine, and I am with you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. 2-3 दिन से लगातार मुझे अपील आ रही है कि सर एज रिलैक्सेशन के ऊपर आप एक कैंपेन चलाइए. चिंता जायज़ है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डिले होते जाते हैं
तो उससे नुकसान ये होता है कि जो लोग बिल्कुल लास्ट चांस पे होते हैं उनका चांस निकलता चला जाता है, और इतने साल से वो मेहनत कर रहे होते हैं और उनका चांस निकल जाता है। बिल्कुल जायज़ है। पर एक तरफ हमें ये भी देखना है कि क्या इस समय यदि कोई कैंपेन चलाया जाएगा उसका कोई असर होगा। क्या सरकार ऐसी स्थिति में है कि इस कैंपेन के बारे में विचार करे, जबकि अधिकांश ऑफिस कम से कम स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी कठिन है। क्यों कठिन है? एक तरफ सरकार की जो इनकम है वो सडनली दोबारा गिर गई है, क्योंकि जब एक्टिविटीज़ बंद होती हैं तो टैक्स कलेक्शन साथ साथ गिरता है। तो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, सबका रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया। उधर से खर्चे बढ़ने शुरू हो गए, जिस हिसाब से लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं देनी है, दवाइयाँ देनी है और चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, सबके लिए पैसा चाहिए। खर्चा बढ़ गया, और ये खर्चा आपने प्लान नहीं किया बजट के अंदर, क्योंकि मार्च से पहले स्थिति ये थी कि सबको ये लग रहा था कि कंट्रोल में आ गई है चीज़ें, तो कोई भी सेकंड वेव के लिए तैयार नहीं था। किसी भी बजट के अंदर प्रावधान नहीं है इन खर्चों का। फिर सडनली सरकार ने ये भी फैसला कर लिया कि 18 साल से जो अधिक आयु के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। अब वैक्सीनेशन होगा तो अधिकांश सरकारों ने ये भी फैसला किया कि उसका खर्चा वो वहन करेंगी, और खर्चा जब वहन करेंगी तो उसके लिए पैसा चाहिए। बजट में उसका प्रावधान नहीं है। तो क्या हुआ? अब आपके पास इनकम घट गई, खर्चा और बढ़ गया, तो रास्ता क्या बचा? उधार। तो अभी केंद्र सरकार ने, आज के अखबार में न्यूज़ आई है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र को ये अलाउ कर दिया है कि जो उनको उधार बाद में लेना था वो अभी ले सकते हैं, और फिर बाद में सोचा जाएगा क्या होगा। तो अब सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार उधार लेना शुरू करेंगी, और इस पैसे को उधार लेके जो अभी के खर्चे हैं उनको चलाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो एक क्राइसिस वाली स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है कि किसी तरह वर्तमान को बचाया जाए। तो ऐसे में यदि किसी भी प्रकार का कैंपेन चलता है, किसी भी प्रकार की कोई डिमांड रखी जाती है, मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकारी उसके ऊपर विचार करने की स्थिति में होगा, क्योंकि अभी सबका ध्यान कहाँ केंद्रित होगा, क्योंकि काफ़ी ऑफिस तो रन ही नहीं कर रहे। अब जैसे दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, कोई 50% अटेंडेंस पे चल रहा है, कोई 30% अटेंडेंस पे चल रहा है, कोई 20% पे चल रहा है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ बीमार हैं, काफ़ी एम्प्लॉइज़ के घर वाले बीमार हैं, तो वो तो ऑफिस ही नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम कोई भी कैंपेन चलाते हैं तो वो मेरा ख्याल आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, वो एक फुटाइल एफर्ट होगा। इस समय वक्त है हम पेशेंस रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। जो लोगों की एज निकल रही है उनका बिल्कुल जेन्युइन है कॉज, और इस जेन्युइन कॉज पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इस विषय पे, और हम इस कैंपेन को चलाएंगे भी। जैसे स्थितियाँ ऐसी होंगी कि जहाँ हमें लगेगा कि सरकार इस अवस्था में है कि हमारी बात को सुन सके और उस पर कोई फैसला कर सके, उस समय हम इस कैंपेन को चलाएंगे। मेरा मानना ये है अभी टाइम नहीं है ये। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, करिए। पर जब इतनी विकट स्थिति हो देश के सामने, चारों तरफ अभी मतलब कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, और रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। एक एक करके कंट्री ट्रैवल बैन भी लगाते जा रहे हैं। जो पैसा बाहर से आता था, बाहर जाते थे लोग, मतलब हर तरफ से अभी थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक कठिन स्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं, कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ दिन के लिए हमें पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय दूसरा आदमी सुनने की स्थिति में नहीं है और उसको हम कोई भी अपनी व्यथा सुनाएंगे तो उसका मेरे को नहीं लगता कोई रिजल्ट निकल के आएगा। हमें उस समय ये बातें रखनी चाहिए जब एक ऐसी स्थिति हो कि दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनने के लिए भी तैयार है
और उस पर कुछ करने की भी उसमें क्षमता है। अब आप देखो, आज एक नोटिफिकेशन आया, उसमें उन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है जून के एग्ज़ाम की। अब जून में कहाँ संभव है एग्ज़ाम? अब क्या होगा, ये पहले से बना हुआ नोटिफिकेशन होगा, आज रिलीज़ हो गया, अब उसमें एक भ्रम शुरू हो जाएगा कि जून में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मतलब अभी इतनी भयानक स्थिति के अंदर कोई एग्ज़ाम करा लेगा, मतलब थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है। तो मेरा मानना ये है कि एज रिलैक्सेशन के लिए आपकी डिमांड मैं आपके साथ हूँ, इसको हम उठाएंगे, पर थोड़ा सा समय ऐसा हो कि जहाँ सामने वाला सुनने की स्थिति में हो और हमें रिलीफ देने की स्थिति में हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम ऐसी वक्त में उठाते हैं जब कोई उसको ध्यान ही नहीं देगा, तो वो क्या होता है, हमारा एफर्ट बेकार हो जाता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव कहता है। अपॉर्चुनेट टाइम पर ही कोई चीज़ हम उठाते हैं तो उसका असर भी होता है और दूसरा व्यक्ति भी उस पर निर्णय देने में सक्षम होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।